تو بیسیکلی اگلے چیپٹر میں ہم دوبارہ سے واپس جاتے ہیں بغداد میں. شمس تبریز کو لیٹر مل چکا ہے, وہ لیٹر پڑھ چکا ہے, اب وہ تیاری کرے گا. اب آگے کیا ہونا ہے یہ اگلے چیپٹر کے اندر ہم دیکھتے ہیں. اگلی ایپیسوڈ کا نام پھر سے شمس ہے. بیسیکلی شمس تبریز اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, صبح کا ٹائم ہے, سورج کی روشنی پھوٹنے والی ہے. اس سے پہلے وہ اپنے شہتوت کے درختوں کو اور ریشم کے باغات کو دیکھ رہا ہے, اور دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہے. اس درمیان میں اس کا دھیان جو ہے بابا شاہ زمان کی طرف بھی گیا ہے, وہ اس کو بھی مس کر رہا ہے. بابا شاہ زمان کی سیڈ فیس بھی اس کو نظر آ رہا ہے, اس کا اپنا فیس بھی نظر آ رہا ہے. اس درمیان میں وہ سوچ رہا ہے, اور سوچتے ہوئے یہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں نے جو یہ وقت یہاں گزارا ہے کتنا اچھا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مقصد کو دیکھتے ہوئے اپنی امید کو بھی تھوڑا سا ریفریش کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ سوچ رہا ہے کہ جب میں صبح اٹھا تھا تو میں اٹھ کے کیسے اپنے بال شیو کر لیے, اپنی داڑھی شیو کر لی, ایون اپنی آئی بروز تک شیو کر لی تھی. تو یہ بہت ہی ایک امیزنگ سا ایکسپیرینس تھا. اس ایکسپیرینس کا مطلب کیا تھا جو بابا شاہ زمان نے بھی پہلے ذکر کر چکے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کہتا ہے کہ ناؤ اب میں نے اپنا پاسٹ, اپنا ماضی, اپنا ایکسپیرینس, ہر چیز کو شیو آف کر دیا. اب میری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. آئی ایم نو بڈی, آئی ایم جسٹ اے نیوٹرل پرسن, جسٹ لائک اے نیو بورن پرسن. آئی ایم لکنگ مچ ڈفرینٹ دین دا پرسن آئی ایم. اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی میری پرانی آئیڈینٹی سے جانے. میں ایک نئی آئیڈینٹی کے ساتھ ایک نئے دنیا میں, نئی جگہ پر جا رہا ہوں, جہاں پہ جا کر کے میرے ساتھ جو ہونا ہے اس کو میں نے اللہ کے راستے میں چھوڑا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو یہ کر کے اس کے بعد یہ نکلنے لگتا ہے. تو بابا شاہ زمان اس کو 3 گفٹ بھی دیتا ہے. ایک رومال دیتا ہے, ایک آئینہ دیتا ہے چھوٹا سا, اور ایک ڈبیا دیتا ہے جو مرہم کی ہوتی ہے. اور وہ کہتا ہے جب تمہیں لگے کہ تمہارے کریکٹر داغدار ہو رہا ہے, تم پہ کوئی الزام لگا رہا ہے, تو اپنے آپ کو اس رومال سے دیکھ لینا, اور دیکھنا کہ تم اندر سے کتنے پاک اور صاف ہو. کبھی کوئی تمہیں کوئی ڈپریشن ہو, یا جب تم پہ کوئی ڈپریشن یا دکھ ہو تو اس آئینے کو دیکھ لینا. یہ تمہارا باطن دکھا کے تمہیں سکون دے گا. جب تمہیں کوئی دکھ ملے, کوئی درد ملے, کوئی غم ملے, تو یہ مرہم لگا لینا. یہ تمہیں باطنی اور روحانی اور دنیاوی آرام دے گا, اور تمہیں اس میں بہت سکون ملے گا. یہ کہہ کے بابا زمان کا شکریہ ادا کرتا ہے, اپنے گھوڑے پر بیٹھتا ہے, اور اپنے اگلے سفر کی طرف روانہ ہوتا ہے. اس سفر کی اتنی بڑی ہائپ کریٹ کر دی گئی, اتنی خوبصورت ہائپ کریٹ کر دی, پتہ نہیں ہونا کیا ہے. آئی ڈونٹ نو, سیریسلی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. ایون آئی ڈونٹ نو اپ ٹل ناؤ. میں بھی اتنا ہی ایکسائٹیڈ ہوں جہاں تک یہ اسٹوری چل رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے, لیکن اگلی ایپیسوڈ میرا نہیں خیال کہ کوئی لیس انٹرسٹنگ ہوگی, کیونکہ اب جو جا کر کے ایک تو اس کو 9 مرید میں بھی مل جانا میرا خیال ہے, جو میری ابھی تک کی اسٹوری کے آئیڈیا کے مطابق میں نے دیکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب یہ جائے گا, اور جا کے کیسے کونیا میں یہ ملے گا, رومی کیسا ہے, رومی کیا کریں گے, رومی کیسے ہوں گے, ان سے اس کی میٹنگ کیسے ہوگی, آئی ڈونٹ نو. بیسیکلی 9 مرید کے ٹائٹل سے یہ نیکسٹ اسٹوری آتی ہے, جس کے اندر 9 مرید جو ہے وہ بیسیکلی پچھلی ایپیسوڈ میں پرمیشن مانگ چکا تھا اس سے, بابا زمان سے, کہ میں شمس تبریز کو جوائن کرنا چاہتا ہوں, اس کا رفیق کے سفر بننا چاہتا ہوں. وہ اسے کہتا ہے بھائی یہ میری اتھارٹی نہیں ہے, تو ساڈے والوں فارغ ہے, تو اگے جا کے جو جوائن کرنا چاہتا کر لے, دیٹس یور اون چوائس. سو یہاں پہ یہ وہ اس کی طرف سے فارغ ہو چکا ہے. شمس جو ہے, شمس تبریز اپنے گھوڑے پر نکلا, اور نکل کے اس نے پچھلے چیپٹر میں اس نے بتایا تھا کس طرح گھوڑے سے نکلا, کیسے ڈیٹیلز, ایک چیز ڈیٹیل بتاتے ہیں بھائی. یہ تو بڑے خوبصورتی سے ڈیٹیل بتاتے ہیں, کیونکہ اس بتانے کے اندر اس نے یہ بھی بتایا اس نے شیو کیوں کر لی, بھویں کیوں مونڈ لی, داڑھی کیوں مونڈ لی, اپنے آپ کو ایک نیا ری انکارنیشن, ایک انسان کی شکل میں وہ دوبارہ بنا, تاکہ اس کی کوئی پرانی حیثیت نہ رہے, کوئی پرانی پرسنالٹی نہ رہے, اور سب کچھ. تو اس طرح خیر کر کے یہ آگے چل رہا ہے, اور آگے جا رہا ہے. تو اس کا گھوڑا بھاگتا جا رہا ہے. اس کے پیچھے سیف ڈسٹینس پہ 9 مرید کا بھی گھوڑا پیچھے ہو رہا ہے. نیکسٹ جو بھی بازار یا کوئی شہر آتا ہے, وہاں پہ شمس تبریز اپنے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے رکتا ہے. تو وہاں پہ اس کا گھوڑا دیکھتا ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اوے سنہری بالوں والے, تو یہاں کیا کر رہا ہے 9 مرید. تو وہ کہتا ہے جی, اس کے ایک دم گھوڑے کے آگے آ کے لیٹ جاتا ہے, اور اسے بہت ترلے کے انداز میں کہتا ہے پلیز مجھے بھی ساتھ لے جائیں, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں آپ کا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ رہوں گا, آپ کی خدمت کروں گا. یہ وہ کہتا ہے مجھے خدمت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اپنے ساتھ رفیق چاہیے ہی نہیں سفر کا, کیونکہ تم کیا کرنا چاہتے, تمہارا مقصد کیا. وہ کہتا ہے میں مرید خانہ چھوڑ کے آؤں گا. کہتا ہے تم وہاں پہ اچھے تھے, وہاں پہ خوش تھے, تو یہاں پہ تم کیا کر رہے ہو. کہتا ہے مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. یہاں پہ یہ اپنا ایک رول آف لو بتاتا ہے, جس رول آف لو کے مطابق یہ کہتا ہے کہ مرشد جو ہوتا ہے اس کو آپ کو اس کے اندر یہ کوالٹیز دیکھنی چاہیے, اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے, وہ اپنی تعریفیں نہ کروائے. اور دنیا میں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں اتنے ہی جھوٹے
मुर्शद भी मौजूद हैं, पीर भी मौजूद हैं, तो आप लोगों को अपना ओरिजिनल पीर व मुर्शद ढूंढना होता है कि कौन ओरिजिनल बंदा है। ओरिजिनल बंदे की क्वालिटीज़ ये होती हैं, बड़ा हम्बल होता है, वो अपनी तारीफ़ें नहीं करता, आपको अल्लाह ताला के साथ लौ लगवाता है, आपको बातिन की पहचान सिखाता है, और वो आपके अंदर से, रूह के अंदर से एक रोशनी गुजारता है जो आपको अल्लाह ताला की पहचान करवाती है। वो अपने लिए, अपने रिलेटेड कुछ नहीं कराता, उसे अदब नहीं चाहिए होता, उसे प्यार नहीं चाहिए होता, उसे इज्जत नहीं चाहिए होती, उसे एहतराम नहीं चाहिए होता, वो तो सिर्फ आपकी लौ अल्लाह ताला से लगाने के लिए दुनिया में आया होता है। ये होती है प्योर मुर्शद व पीर की एक निशानी। इसके अलावा वो कहता है अगर कोई बाकी देखते तो वो झूठे होंगे, वो दुनियावी होंगे। तो खैर इस तरह की बात करके इसको एग्जाम्पल देता है। वहाँ पे उसे कहता है कि जा बाबा आप जान छोड़। वो बड़ी जिद करता है, कहता है नहीं नहीं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी करके देख ली है, मैं आपके अलावा मर जाऊँगा, मैं आपके साथ ही सफ़र देना, जिस तरह आपका सफ़र होगा मैं उस तरह गुजारना चाहूँगा। खैर यहाँ पे वो उसके एक टास्क देता है, कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा जाना चाहता है तो एक काम कर, वो सामने मैं खाना है, वहाँ से खुलेआम जाके शराब की एक बोतल लेके यहाँ पे ला, और यहाँ पे ला के खड़ा होके सबके सामने उसे पी के दिखा। तो यहाँ पे ये एकदम कहता है जी आप मुझसे कुछ भी करवा लें, मुझसे बर्तन मंजवा लें, मुझसे प्याज 100 प्याज कटवा लें, इतनी देगें पकवा लें, इतना खाना पकवा लें, इतना ये पकवा लें, वो पकवा लें, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि अगर मेरे बाप ने देख लिया मेरी हड्डियाँ तोड़ देगा कि उन लोगों ने तो मुझे दीन सीखने के लिए, इस्लाम सीखने के लिए भेजा, इस्लाम में तो शराब हराम है, तो ऐसे ऐसे है। तो वहाँ पे वो कहता है कि मैं ये नहीं कि मुझसे होगा। तो यहाँ पे वो कहता है अच्छा तू मेरा मुरीद बनना चाहता था, तो मेरा मुरीद नहीं बन सकता बेटा, तू जा, तू अपना काम कर, अपने घर जा, अपने घर वालों की खिदमत कर, और कोई बिज़नेस सीख, दुकानदारी सीख, क्योंकि तुझे बहुत ज़्यादा दुनिया की परवाह है, तुझे दुनिया की से की, दुनिया की नज़रों की, दुनिया के पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा परवाह है। जिस बंदे को दुनिया की, दुनियादारी को, दुनिया को खुश करना हो, जिसने दुनिया की परवाह हो, वो दरवेश नहीं बन सकता, तो बेटा तू जा इस मामले। तो वो कहता नहीं नहीं, मैं तो समझ रहा था शायद आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, आप मुझे जज कर रहे हैं कि शायद मेरा इम्तिहान। वो कहता है मैं कोई नहीं होता तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए, तुम्हें जज करने के लिए। एक मोमिन को कभी भी दूसरे मोमिन को जज नहीं करना चाहिए, जजमेंट का काम सिर्फ अल्लाह ताला पे रखो, अल्लाह ताला इंसान को जज करे और वही इस चीज़ का फैसला करे कि कौन सही है कौन गलत है। हम इंसानों को जज नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे दरवेशों को तो बिल्कुल नहीं बनता। वहाँ पे उसको फिर थपथपी देता है और कहता है पुत्र चल शाबाश जा वापस अपने घर जा और मुझे आगे का सफ़र करने दे, मेरा ये सफ़र अकेले ही लिखा हुआ है, मैं इसको अकेले ही करना है। वहाँ पे वो अपने घोड़े को टापी करता है और आगे का चलना शुरू करता है। पीछे ये जो नौ मुरीद होता है, ये आखिरी दफ़ा उसको देखता है, उसकी आंखों में उसको कॉन्फिडेंस और डिसीजन नज़र आता है कि अब के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि भाई तू जा, तेरे रास्ता और मेरा रास्ता और। वो आगे निकल जाता है, दूर तक भागता है घोड़ा जाता है, दूर तक उसको देखता रहता है। वहाँ पे क्लाइमैक्स में इसकी एक्सप्रेशन दिखाते हैं, बड़ा डिप्रेस्ड और डाउन। चैप्टर हुआ ख़त्म, नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज़ अल्लाह का चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ अल्लाह। बेसिकली इस दफ़ा 4 या 5 तकरीबन चैप्टर्स के बाद अल्लाह को बेचारी को फिर बारी मिली है, क्योंकि मास्टर का चैप्टर था, फिर नो वॉइस का चैप्टर था, नो मुरीद का, फिर उसके बाद फिर मास्टर का चैप्टर था, फिर शम्स तबरेज़ का चैप्टर था, फिर नो वॉइस का चैप्टर आया, फिर उसके बाद जाके अल्लाह बेचारी की बारी है। सो इस दफ़ा एक कहानी बड़े तसलसल से चलती रही है और शम्स तबरेज़ जो है वो निकल गया है और घोड़े पर बैठ करके उसको नो मुरीद ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शम्स तबरेज़ अपने मकसद की तरफ, अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, कोनिया की तरफ रवाना हो चुका है, जहाँ पे मौलाना रूमी उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। और कैसा होगा वो सीन, क्या होगा जिक्र, कैसे मुलाकात होगी पहली दफ़ा, ये मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है। लेकिन अभी तक ये क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो मुझे सब जाके पता चलेगा कि आगे क्या होना है। तो लेट्स गो फॉर द एला चैप्टर। एला अपने घर में है, बेटी के साथ उसकी दोस्ती हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स जस्ट अनदर फाइन डाइनिंग मॉर्निंग, जहाँ पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी है। वहाँ पे एला को ना हर जगह बैठे हुए ना सोचों की बड़ी आदत होती है। ये कोई भी चीज़ देखते हुए ना कहानी बनाना शुरू कर देती है, डेवलप करना शुरू कर देती है और सोचना शुरू कर देती है। सोच रही होती है बैठी कि जो बुक्स में होती है, जो फिल्मों में होता है, जो अफसानों में एक डाइनिंग टेबल लिखा होता है, जहाँ पे एक बड़ा फाइन डाइनिंग और बड़ी खूबसूरत डाइनिंग हो रही होती है, जहाँ फैमिली बड़ी हंसते मुस्कुराते हुए प्यार से आपस में बातें कर रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, गप्पे मारते हैं। हस्बैंड भी बड़ा आइडियल तरीके से बीवी को स्माइल करता है, बीवी नाश्ता प्रेजेंट करती है, बच्चों को नाश्ता देती है, सीरियल देती है, सारे बच्चे स्माइल दे रहते हैं। एंड में बच्चे माँ को किस करके गुड बाय मॉम, टेक केयर मॉम करके चले जाते हैं। बट मेरी फैमिली इस तरह की क्यों नहीं? हर कोई चबड़ चबड़ लड़ रहा है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, जो औरिया और वो जो आपस में लड़ रहे हैं, कोई सैंडविच छीन रहा है, ऐसे कोई जल छीन रहा है। जो जैनेट है वो भी चिड़ी हुई बैठी है, वो बाकी बहन भाई से बहुत लड़ रही है। हस्बैंड जो है वो अपने अखबार को पढ़ी जा रहा है, लीस्ट इंटरेस्टेड कि क्या हो रहा है। और ये बेचारी अपनी इस तरह से स्टिल होकर उन लोगों को देख रही है। शी इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर अ आइडियल ब्रेकफास्ट टाइम, एन आइडियल मॉर्निंग विद अ होस्ट नाइट। हालांकि अब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, इसकी बेटी भी इसका सेट हो चुकी है, ठीक हो चुकी है, उसने भी सॉरी कर दिया, इसने भी सॉरी कर दिया। इसका हस्बैंड के मामले में चल रहा है, मतलब वो वाला पार्ट अभी इसने फ़िलहाल
टोटली हिडन ही साइड पे किया हुआ कि इसके बारे में बाद में सोचूंगी डिटेल से। खैर अभी इस दरम्यान में किचन में जाती है, वहाँ जाके ये लैपटॉप खोलती है और एकदम लैपटॉप खोल के ईमेल चेक करना शुरू करती है। उसका ख्याल होता है कि शायद ईमेल कोई आई हो, क्योंकि ये ज़ाहरा इसके बैक माइंड में चल रहा होता है कि शायद उसको मैंने मेल की थी, शायद मे भी उसका जवाब हो। कोई एक रे ऑफ लाइट, एक होप, एक उम्मीद की रोशनी इसके माइंड में अभी भी चल रही है कि शायद इस बारे में कोई ईमेल आए कुछ भी, तो मुझे खुशी होगी जान के। ईमेल खोलती है, वहाँ पे एजी ज़ारा का लेटर होता है। एजी ज़ारा इसको थैंक्स का बोलता है, बहुत खुश होता है आगे से जान के कि तुम्हारी बेटी के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए, और साथ में बताता है कि मैं वो ग्वाटेमाला का जो गांव था उसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जब जा रहा था तो वहाँ से मैंने एक रग लिया, बड़ा खूबसूरत सा रग था। फिर वो बताता है कि तुम्हारी मैं लाइफ के बारे में कुछ पढ़ा, मैं जानने की कोशिश की, तो मुझे तुम्हारे नाम से 3 कलर्स जहन में आए। इससे वो इनडायरेक्टली इसकी नेचर, इसकी सिम्बॉलिज्म और इसके इमोशंस को डिपिक्ट करके फिर साथ में बताता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा हुआ है, अगर कहो तो मैं तुम्हें पोस्टल कर देता हूँ, नहीं तो कभी तुम चाय के लिए आओ, चाय के लिए मिलते हैं, बैठते हैं। तो इट वॉन्ट बी कॉल एज अ डेट, लेकिन वो साथ में इसको बोलता है कभी तुम आओ तो बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे ये जान के सुन के बड़ा खुश फील करती है, बड़ा छोटी उम्र का फील करती है, और ये साथ ही अपनी स्टोरी सोचना शुरू कर देती है। मेरे माँ के साथ ताल्लुकात कैसे थे, मेरी माँ जो बहुत डिवोटिंग वाइफ थी, और लेकिन उसकी शादी फिर भी नहीं चल सकी, उसका जो मेरे बाप था वो ऐसा था वैसा था। फिर बाद में कहती है नहीं, कि मैंने हमेशा से अपनी माँ से वादा किया था कि मैं अपने घर को बड़ा खुश रखूँगी, अपने मियाँ को खुश रखूँगी, उसकी मर्ज़ी के खाने बनाया करूँगी, उसका दिल बहलाऊँगी, और साथ ही साथ मैं अपनी लाइफ को कभी टूटने नहीं दूँगी, क्योंकि ये मेरी कमिटमेंट थी अपने साथ। क्योंकि मैं अपनी ब्रोकन फैमिली से आई थी, मेरी पूरी ख्वाहिश थी कि अपने घर को तोड़ने नहीं देना। एकदम से इनके बच्चे जंप इन करते हैं, कहते हैं मामा व्हाट्स गोइंग ऑन, आप तो नाश्ता लेने के लिए अंदर आई थी, हमें उम्मीद नहीं कि आप नाश्ते नहीं बना रही, ये क्या बात हुई आप। दे वर वेरी सरप्राइज कि माँ इतनी शॉक्ड है और माँ इनकी आवाज़ ही नहीं सुन रही। बेचारे कितनी देर से आवाज़ दे रहे थे। शी वॉज लॉस्ट इन द लैपटॉप। मेरा ख्याल है इसके जहन पे कोई बहुत बुरे असरात है, ये बैठे बैठे सोचों में घुस जाती है, जब घुसती है तो वापस ही नहीं आती। इस एपिसोड के अंदर बेसिकली 3 रूल्स ऑफ लव भी बताए गए हैं, जो कि मैं इस एपिसोड के अंदर इसलिए नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि उससे एपिसोड की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, लेकिन उन तीनों रूल्स ऑफ लव को मैंने अलग से शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी और फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी। काइंडली वहाँ से देखिए, वहाँ से देख मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा। और मैं जितनी शॉर्ट वीडियोज़ बना रहा हूँ सबका मकसद ये है कि मेरी शॉर्ट वीडियोज़ रूल्स ऑफ लव के नाम से अलग अलग अपलोडेड हों, ताकि आप जब भी चाहो उनको देख सको, चाहे उसको शेयर कर सको, बिकॉज दोज आर द जूल ऑफ द बुक एंड जूल ऑफ शम्स तब्रेज़, और आई लव दैम। और मैं तो उन सब चीज़ों को एक बहुत ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म और कोई बहुत ही एक ऑथेंटिक चीज़ के तौर पे सोचता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ। आई एम लविंग दिस। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।